Hello guys, welcome to my channel Maths Mantra. Today I am going to explain chapter 12 for class 9, and that is area of different types of triangles. So first of all, we have equilateral triangle. A triangle having all sides are equal, then it is called equilateral triangle, and the formula to find area of equilateral triangle is root 3 upon 4 into side square. Now the next triangle is right triangle. A triangle having one angle of 90°, then it will be called as right triangle. And the formula to find area is half into base into height. Now the next triangle is isosceles triangle. Isosceles triangle, a triangle having two sides are equal, and the formula to find the area is b upon 4 multiply under root 4a square minus b square. अब a और b क्या है? देखिए a मीन्स इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम इक्वल साइड्स को a से प्रेजेंट करेंगे, और जो थर्ड रिमेनिंग साइड है दैट I will present by the letter B, right? Now the next triangle is scalene triangle. You know, scalene triangle is a triangle having all sides different. So what is the procedure to find the area of this scalene triangle? पहले scalene triangle का area find करने के लिए कोई formula हमारे पास नहीं था, तो जो मैथमेटिशियन थे उनका नाम था हीरोन्स। उन्हीं के नाम से इस मेथड का नाम, इस फॉर्मूले का नाम भी हीरोन्स फॉर्मूला रखा गया। तो ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है, क्या प्रोसीजर है इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए? तो उसके लिए सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना होता है, राइट? सेमी पेरीमीटर मीन्स, सेमी मीन्स हाफ एंड पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी एस का जो फॉर्मूला आया सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हम सारी साइड्स का सम करके उसको हाफ करेंगे। और एबीसी हमने किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? हम साइड्स को प्रेजेंट कर रहे हैं ट्रायंगल की, राइट? बट ये तो अभी एस फाइंड किया, सेमी पेरीमीटर फाइंड किया, हमें तो एरिया फाइंड करना है, एंड द फॉर्मूला इज अंडर रूट एस bracket s minus a bracket next x minus b and the third bracket is s minus c, and later on ये पाया गया है हीरोन्स फॉर्मूला है सिर्फ स्केलिन पर ही नहीं, हर टाइप के ट्रायंगल पर अप्लाई हो सकता है। तो यानी आपको एक बहुत स्पेशल चीज मिली कि अगर आपको सपोज इक्विलेटरल का, आइसोसेलेस का या राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला लर्न नहीं भी है, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके हर ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, है ना मैजिक? यू विल बी कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई दीज फॉर्मूले in solving some particular questions of chapter 12. So first question is, find semi perimeter of a triangle having sides 8 centimeter, 9 centimeter and 13 centimeter. So option A is 10 centimeter, option B is 30 centimeter, option C is 15 centimeter and option D is 60 centimeter. तो मैंने अभी डिस्कस किया, हम सेमी पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और इसका फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। तो हमने तीनों साइड का सम किया और इसको किस से डिवाइड किया? 2 से, और इन सबको सम करते हैं। देखिए 8 प्लस 9 इज 17, 17 प्लस 13 इज 30, 30 and it is divided by 2 and this will be cancelled and answer will be 15. So 15 centimeter is the right answer of this question. So option C is the correct answer. Now move to the next question, question number 2. Question 2 is, what is the area of an equilateral triangle with side 2 centimeter? You know all the sides of equilateral triangle are equal. So option A is root 6 centimeter square, option B is root 3 centimeter square, option C is root 8 centimeter square and option D is 4 centimeter square. हमें पता है कि equilateral triangle का area find करने के लिए formula क्या है? root 3 upon 4 into साइड का स्क्वायर, और साइड हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है? 2। तो हम वैल्यू रखते हैं रूट 3 अपॉन 4
और 2 का स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 4 जो है वो इस 2 से और इस 2 से क्या हुआ, कट हुआ, और आंसर आया हमारे पास √3 centimeter square. So, which option is right? Option B is right in this question. Now, third question is, if the perimeter of an equilateral triangle is 60 centimeter, then what is its area? Option A is 200 under √2 centimeter square. Option B is 100 √2 centimeter square. Option C is 100 √3 centimeter square. And option D is 200 under √3 centimeter square. So in this question we have perimeter of equilateral triangle, but हमें तो एरिया फाइंड करने में साइड की जरूरत होगी, तो हम इस पेरीमीटर को कैसे साइड में कन्वर्ट करेंगे? देखिए, जो पेरीमीटर बड़ी चीज है और साइड जो है वो छोटी चीज है, और छोटी चीज मल्टीप्लाई से नहीं, हमेशा डिवाइड से फाइंड की जाती है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है, तो फॉर्मूला होता है P/3। तो हमारे पास जो साइड आई है वो कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। अब हमें साइड पता चल गई, अब हम एरिया को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए मीन्स साइड, ओके, स्मॉल a मीन्स साइड ऑफ दैट ट्रायंगल। तो √3/4 तो फॉर्मूले का पार्ट है, और जो a स्क्वायर मीन्स क्या है, 20 मल्टीप्लाई बाय 20। अब 4 से 20 कट हो सकता है, 5 पे कट हुआ, एंड इट इज 25 जा 100 √3। एंड देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, ऑप्शन सी इज राइट। सो टिक दिस आंसर, right? Question 4 is, what is the length of sides of an equilateral triangle having area 9 under √3 centimeter square? Option A is 4 centimeter, option B is 5 centimeter, option C is 7 centimeter, and option D is 6 centimeter. So इस क्वेश्चन में हमारी हेल्प करेगा एरिया, और वो कैसे हेल्प करने वाला है, एरिया का फॉर्मूला हमारी हेल्प करेगा, और वो फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, 9 अंडर √3। अब √3 से √3 कट करते हैं, और ए स्क्वायर हमें यहाँ पर रखा, और जो डिवाइड में 4 है हमें पता है वो राइट में जाके हो जाता है मल्टीप्लाई, और 9 4 जा क्या होता है, 36, और हमें ए का स्क्वायर भी हटाना है और उसको भी राइट साइड में सेंड करना है, तो राइट में जाके स्क्वायर बन जाता है स्क्वायर रूट, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, यानी जो हमें साइड फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड की, दैट इज 6 सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर। So now question number 5 is, sides of a right triangle are 24 centimeter, 7 centimeter and 25 centimeter. Then area of triangle is, option A is 84 centimeter square, option B is 168 centimeter square, option C is 98 centimeter square, and option D is 120 centimeter square. तो देखिए, राइट ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमें तो 3 साइड्स पता है ट्रायंगल की, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस है, कौन सी हाइट है? हमें पता है कि एक राइट ट्रायंगल की साइड्स के नाम होते हैं बेस, हाइट एंड हाइपोटेन्यूज। हमें हाइपोटेन्यूज नहीं चाहिए, हमें चाहिए बेस और हाइट। और हाइपोटेन्यूज कैसे पता लगाएं, इसमें कौन सा है? तो हाइपोटेन्यूज की स्पेशलिटी होती है कि वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, यानी 25 जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो इसे हम नहीं लेंगे। तो अब 24 और 7 में से बेस कौन सा है और हाइट कौन सी है, वो आप किसी को भी बुला सकते हो, एक को हाइट बोल देते हैं, एक को बेस बोल देते हैं। सो इट इज 24 इंटू 7, ये हाफ से 24 12 पे कट हो गया, एंड आंसर इज 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। So question 6 is, base and hypotenuse of a right triangle are 12 centimeter and 13 centimeter respectively. Then what is its area? So option A is 78 centimeter square, option B is 30 centimeter square, option C is 65 centimeter square, and option D is 45 centimeter square.
तो देखिए इस क्वेश्चन में बेस और हाइपोटेन्यूज बताया है और हमसे एरिया फाइंड करवाना चाहते हैं। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला तो अभी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन 5 में कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास तो हाइपोटेन्यूज है, बेस के साथ तो हमें हाइट की नीड होगी। तो हम क्या करेंगे, हम हेल्प लेंगे पीजीटी से, क्योंकि पीजीटी ऐसी मैजिक ट्रिक है जो कि हाइपोटेन्यूज और बेस की हेल्प से हमें हाइट को फाइंड करने में हेल्प करता है। और उसके लिए क्या फॉर्मूला है, हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज और बेस तो हमें पता है, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है और वो क्या है इस क्वेश्चन में, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। और 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। और अगर इसे हम माइनस करें आंसर विल बी 25। हमें तो सिर्फ हाइट चाहिए, तो जो स्क्वायर है वो इधर आके क्या बना, स्क्वायर रूट। और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें हाइट पता चल गई। क्या अब हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं? डेफिनेटली। एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अब हमारे पास बेस कितना है, 12 है, और हाइट कितनी है, 5 है। तो अब इसमें से 2 को 12 से कट कर सकते हैं, तो 2 6 जा 12, सो आंसर इज 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, right? So what is the right answer? Which is the right option? That is option B. Next question 7 is, length of one of the equal sides of an isosceles triangle is 4 centimeter. If its base is 2 centimeter, then what is its area? So option A is root 15 centimeter square, option B is root 13 centimeter square, option C is root 12 centimeter square and option D is root 14 centimeter square. तो देखिए अब हमारा टॉपिक आ गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, चलिए रिमाइंड करते हैं। फॉर्मूला है b अपॉन 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a और b तो हमें पता है, इक्वल साइड को हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में इक्वल साइड है 4 सेंटीमीटर, और b हम बेस के लिए थर्ड रिमेनिंग साइड के लिए बोल रहे हैं और वो इस क्वेश्चन में कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो चलिए वैल्यूज को हम प्लेस करते हैं। b के प्लेस पे रखा हमने 2 डिवाइडेड बाय 4 और अंडर रूट हमने अंदर वैल्यूज क्या रखी, 4। a स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 4, और b स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि b की वैल्यू है 2। अब ये 2 से 4 कट हो सकता है 2 पर, तो हमारे पास क्या आया आंसर, 1/2। और अगर हम ब्रैकेट के अंदर वाला वर्क को सिंप्लीफाई करें, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और उसमें से 4 को माइनस करते हैं, सो इट विल बी 1/2 अंडर रूट 60। अभी तो आंसर मैच नहीं हुआ है, तो इसका मतलब अभी हमें रूट 60 को भी ओपन करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो रूट 60 को मैं अगर ब्रेक करूं तो कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 15, और 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, वो बाहर आ सकता है, और वो बाहर आके बना 2, और रूट 15 तो अंदर ही रह गया। अब 2 से 2 कट हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर तो कट हो सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आया रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली राइट। Now next question is question 8. The sides of a triangle are 8 centimeter, 11 centimeter and 13 centimeter. Its area will be, option A is 8 root 30 centimeter square, option B is 4 root 10 centimeter square, option C is 30 centimeter square and option D is 60 root 2 centimeter square. तो पहले इस ट्रायंगल का टाइप देखिए, all the sides are different, राइट? सो दिस इज अ स्केलिन ट्रायंगल, और स्केलिन के लिए हमारे पास मैजिक ट्रिक है,
हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला का प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड एस। एस मीन्स सेमी पेरीमीटर, और उसमें हमें क्या करना है? तीनों साइड्स का सम करके उसको हाफ करना है। अब देखिए ऐड करते हैं, 8 प्लस 11 इज 19 एंड 19 प्लस 13 इज 32 and it is divided by 2 and it will be cancelled and it is 16 centimeter. This is the only S. हमें तो एरिया फाइंड करना है। एस को क्यों फाइंड किया हमने? क्योंकि हमारे एरिया में एस की नीड है। और वो कैसे? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो पहले हम एस रखते हैं 16, फिर ब्रैकेट में 16 माइनस 8, फर्स्ट साइड को माइनस किया 16 में से, नेक्स्ट ब्रैकेट में 16 माइनस 11, एस माइनस बी हो गया, और नेक्स्ट ब्रैकेट में 16 माइनस 13, नेक्स्ट हमारा ब्रैकेट हो गया। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, और कैसे? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए हम इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 16 को मैं अगर ब्रेक करूं तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 8, और 8 को ऐसे ही रहने देते हैं एंड इट इज 5 इंटू 3। ये तो प्राइम नंबर है, ये तो ब्रेक हो भी नहीं सकते। अब देखिए 8 और 8 ने पेयर बनाया, और आपको पता है जो पेयर बना लेते हैं वो रूट से बाहर आ जाते हैं। सो 8 तो बाहर आया, और अंदर जो बचा वो क्या क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और अंदर वालों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो होगा 8 अंडर रूट 30, और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो देखते हैं कौन सा आंसर मैच हुआ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। Now question 9 is, two sides of a triangle are 16 centimeter and 20 centimeter. If perimeter of this triangle is 48 centimeter, then what is its area? Option A is 60 centimeter square, option B is 48 centimeter square, option C is 96 centimeter square and option D is 80 centimeter square. तो देखिए हमारे पास सिर्फ दो ही साइड है, तो हमें नहीं पता ये किस टाइप का ट्रायंगल है होंगे। तो अब हम तीसरी साइड कैसे फाइंड करें? थोड़ी देर के लिए हम उसे सपोज कर लेते हैं वो तीसरी साइड है x, और पेरीमीटर जो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो हमने तीनों साइड का सम किया और इसे पेरीमीटर के इक्वल रखा, जो कि कितना है? 48 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 16 और 20 ऐड होके हुआ 36, और ये इक्वल हो गया 48। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 36 को उधर जाना पड़ेगा, और इधर आके क्या हुआ? ये माइनस, और माइनस करके आंसर आया 12। तो हमें पता चल गया तीसरी साइड है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। सो साइड्स आर 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स इट इज अ स्केलेन ट्रायंगल। इट मीन्स वी विल अप्लाई हीरोन्स फार्मूला। सो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ता है? s, और उसका फॉर्मूला है p अपॉन 2। p तो ऑलरेडी पता है हमें, 48 सेंटीमीटर है, राइट? और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, और ये कैंसिल होके आया 24 सेंटीमीटर। अभी एरिया फाइंड करना तो बाकी है, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला हमें लर्न है। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो s की वैल्यू है 24, पहला ब्रैकेट में आएगा 24 माइनस 16, दूसरा ब्रैकेट है हमारे पास 24 माइनस 20, एंड नेक्स्ट थिंग इज जो हमने तीसरी साइड फाइंड की 24 माइनस 12, राइट? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फिर से रूट लगाते हैं। 24 एज इट इज रहा, 24 में से हमने 16 को माइनस किया, तो बताइए क्या आएगा? ये आएगा 8, और 24 में से 20 को माइनस किया 4, और इसमें से माइनस हुआ 12, तो 24 माइनस 12 इज 12। अब इसको देखिए कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 24 को मैंने लिखा 8 मल्टीप्लाई 3, 8 हमारे पास ऑलरेडी है, इसको मैं नहीं ब्रेक करूंगी, और 4 को एज इट इज लिखा, और जो 12 है उसको मैंने 4 मल्टीप्लाई 3 लिखा। अब देखिए पेयरिंग हुई, 8 की 8 के साथ हुई,
3 की 3 के साथ हुई और 4 की 4 के साथ पेयरिंग की, और जो पेयर बना लेते हैं वो रूट से बाहर आ जाते हैं। तो 8 भी बाहर आया, 3 भी बाहर आया, 4 भी बाहर आया, तो 8 3 जा 24, 24 4 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन सी। So now move to the next question. Now the last question is, the sides of a triangle are in the ratio 3:4:5. If its perimeter is 36 centimeter, then what is its area? So option A is 32 centimeter square, option B is 54 centimeter square, option C is 67 centimeter square and option D is 72 centimeter square. देखिए अब हमें साइड्स नहीं बताई, साइड्स का रेशो बताया है। तो पहले हम इसकी साइड्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? तो रेशो को ब्रेक करेंगे। तो रेशो को ब्रेक करने का क्या मेथड है? हम x यानी किसी वेरिएबल से हेल्प लेते हैं। तो ये 3x, 4x, 5x, जैसे ही x इसके साथ जुड़ा रेशो हो गया ब्रेक, यानी हमें साइड्स पता चल गई 3x, 4x एंड 5x। अब हमें नेक्स्ट थिंग पता है पेरीमीटर, और पेरीमीटर ही हमारी हेल्प कर सकता है और उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पर 3x प्लस 4x प्लस 5x इट इज इक्वल टू 36, राइट। अब इन्हें ऐड करते हैं। 3x प्लस 4x इज 7x, 7x प्लस 5x इज 12x, और 12x इसके इक्वल हो गया 36 के इक्वल। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 12 को जाना पड़ेगा राइट साइड में, और वो कैसे जाएगा? डिवाइड होके, और इससे कैंसिल होके आया 3, यानी कि अब हमें साइड्स के बारे में पता चल जाएगा। तो फर्स्ट साइड हो गई 3x, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड आंसर इज 9 सेंटीमीटर। और अगला हमारा साइड क्या था? 4x, 4x मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट साइड इज 5x, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इट विल बिकम 15 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं, और तीनों साइड्स डिफरेंट है, यानी कि कैसा ट्रायंगल है ये? स्केलिन ट्रायंगल है। और अब स्केलिन का एरिया फाइंड करने की मैजिक ट्रिक तो हमें आती है। वो क्या है? पहले हम s फाइंड करेंगे पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करके, और पेरीमीटर हमें ऑलरेडी पता है 36, राइट। सो 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो आंसर आया 18 सेंटीमीटर। अब देखिए एरिया कैसे फाइंड करेंगे? इस s से हमें हेल्प लेनी है। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट s, जो कि हमारे पास आया है 18, एक ब्रैकेट आएगा s माइनस a यानी 18 माइनस 9, अगला ब्रैकेट आने वाला है s माइनस b यानी 18 माइनस 12, एंड द नेक्स्ट ब्रैकेट इज 18 माइनस 15, जो कि हमारा s माइनस c है। अब इस ब्रैकेट को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? पहले हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। 18 का 18 ही रहा, 18 में से 9 माइनस हुआ तो 9 बचा, 18 माइनस 12 इज 6 एंड 18 माइनस 15 इज 3। अब इसको हम पेयरिंग कैसे बनाएंगे कि हम रूट से बाहर ले सके नंबर्स को? तो मैंने किया, 18 को लिखा मैंने 9 मल्टीप्लाई बाय 2, सो इट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 2, एक 9 हमारे पास है, और 6 को मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और एक 3 तो हमारे पास पहले से है। तो देखिए पेयरिंग कैसे बनी? 9 की 9 के साथ बनी, 2 की 2 के साथ बनी, और 3 की 3 के साथ बनी। तो जिसने पेयर बना लिया वो रूट से बाहर आ सकता है। तो 9 बाहर आया, 2 बाहर आया, 3 बाहर आया, सो इट इज 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 centimeter square. So what is the right answer? Option B is right answer in this question, that is 54 centimeter square. I hope you all can understand this topic now, and keep watching my video and wait till next video. Thank you. Bye bye.